मत्ती 14 अध्याय और उसके हम 22 पद से कुछ पदों को पढ़ेंगे। Matthew chapter 14 verse 22. और यहाँ पर हम लोग 22 पद से कुछ पदों को पढ़ेंगे और लगभग हम लोगों को जो पद पढ़ने हैं वे 22 से 36 पद तक हम पढ़ सकते हैं। And we will read from verses 20 to 26. And it goes like this. And straightway Jesus constrained his disciples to get into a ship and go before him unto the other side while he sent the multitudes away. और उसने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया कि वे उससे पहले पार चले जाएं जब तक कि वे लोगों को विदा करें. But the ship was now in the midst of the sea, tossed with waves, for the wind was contrary. उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी. And in the fourth watch of the night, Jesus went unto them walking on the sea. और वे रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, It is a spirit, and they cried out for fear. चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे वे भूत है और डर के मारे चिल्ला उठे. But straightway Jesus spake unto them, saying, Be of good cheer, it is I, be not afraid. यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत. And Peter answered him and said, Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water. पत्रस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे. And he said, Come. And when Peter was come down out of the ship, he walked on the water to go to Jesus. उसने कहा आ. तब पत्रस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा. But when he saw the wind boisterous, he was afraid, and beginning to sink, he cried, saying, Lord, save me. पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा. And immediately Jesus stretched forth his hand and caught him and said unto him, O thou of little faith, wherefore didst thou doubt? यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? And when they were come into the ship, the wind ceased. जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई. Then they that were in the ship came and worshipped him, saying, Oh, of a truth thou art the Son of God. इस पर जो नाव पर थे उन्होंने उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है. And when they were gone over, they came into the land of Gennesaret. वे पार उतरकर गन्नेसरेत देश में पहुंचे. And when the men of that place had knowledge of him, they sent out into all that country round about and brought unto him all that were diseased. और वहाँ के लोगों ने उसे पहचान कर आसपास के सारे देश में कहला भेजा और सब बीमारों को उसके पास लाए. And besought him that they might only touch the hem of his garment, and as many as touched were made perfectly whole. और उससे विनती करने लगे कि वे उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छूने दे, और जितनों ने उसे छुआ वे चंगे हो गए. Praise the Lord. परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने पे हमें आशीष मिले. May we be blessed on the hearing and the reading of the word of हम God. प्रार्थना करेंगे. We will pray. परमेश्वर पिताजी धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए. Lord Jesus, we thank you for this day. आज के वचन जो हमने पढ़ा है उससे आप हमसे बातचीत कीजिए. Please speak to us through your word, Lord अपने Jesus. लोगों को जो आज तेरा वचन सुन रहे हैं, The people who hear your word today, चाहे वो कहीं भी हो दुनिया no में, matter wherever they are, इस वचन से उन्हें आशीष मिले please bless them through this word, और उनके Lord, जीवन की सारी निराशाएं खत्म हो जाएं. and do away with every disappointments of their life. धन्यवाद परमेश्वर, आप अपने दासों को इस्तेमाल करेंगे. Thank you, God, that you will use your servants today. यीशु के नाम से, In the name of Jesus, पवित्र आत्मा के द्वारा by the Holy Spirit, आपकी अगुवाई होने पाए. may we be led by you, Lord. आपके ताजे अभिषेक के लिए May धन्यवाद. we get a fresh anointing, Lord. यीशु के नाम. In the name of Jesus. आमीन. Amen. बोलिए जोर से हालेलुया. Please say aloud, hallelujah. बोल- Amen.
परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। We thank God for this beautiful word. यहाँ पर एक बड़ा खास एक किस्सा है या हादसा है या एक घटना है, We get to see one incident over here. और वहाँ पर यह है कि यीशु मसीह के चेले रात में नाव से वो अपने घरों को जा रहे थे। And we see that the disciples of Jesus were sailing in the ship at night to reach their homes. और फिर वहाँ रात में क्या हुआ कि यीशु मसीह उनकी नाव में नहीं थे। And then what happened? Jesus was not in the ship with them. और यीशु मसीह वहाँ पर जहाँ पर उन्हें चमत्कार किया था, 5 रोटी यानी कि रोटी और मछली का जो आपने किस्सा सुना होगा, वहाँ पर हम लोग देख रहे हैं किस तरीके से प्रभु ने चमत्कार करके 5000 से भी ज्यादा लोगों को भोजन खिलाया था। वो वहाँ रुक गए थे। Jesus stayed back in the place where he did a miracle of feeding 5,000 men with just 5 loaves of bread and 2 fish. और वहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह रुक गए थोड़ा प्रार्थना के लिए। And what we see here is that Jesus stayed back longer to pray over और there. यीशु ने कहा जाओ चलो आप लोग चले जाओ। And Jesus told his disciples, you all go. और चेलों लोगों को मालूम था कि हमारे पास ही नाव है, यीशु के पास नाव भी नहीं है। But the disciples here knew that only we have the ship, but Jesus did not have the और ship. फिर रात हो गई है, कोई भी किराए पर भी नहीं मिलेगी। And also night has come, so who will lend Jesus any ship? तो वो फिर भी चले गए, But still they went away. क्योंकि यीशु मसीह अपने हिसाब से कभी-कभी रातों में प्रार्थना करते थे। Why? Because Jesus, sometimes according to his will, he used to pray for long hours in the night. So इस कारण से यीशु मसीह रुक गया और चेले चले गए। That's why Lord Jesus stayed back, but the disciples went away. पर रात में जब वो जा रहे थे तो आंधी तूफान आ गया समुद्र में। But what happened when disciples were going? They encountered wind and strong winds. तो बहुत ही नाव जो डूबने लगी और बहुत वे परेशान होने लगे। So what happened? Their ship started sailing and they got terrified. नाव बहुत ज्यादा डूब रही थी। Now the ship was about to sink. और फिर ये लोग रोने धोने लगे। And they got so terrified that they started crying and wailing. और उसी बीच में क्या हम देखते हैं? But what do we see in the midst of all this? कि उनके सामने से कोई रात में अंधेरे में कोई आ रहा है। We see someone coming in front of them in the darkness of the night. और वो भी पानी पे चल कर आ रहा है। And that too walking on water. कितना ज्यादा हमको डर लगेगा How much we will be scared, beloved, if we अगर see something हम like this. लोग आंधी तूफान के बीच में समुद्र में हो Especially when we are caught up in strong winds and storm. और ऊपर से कोई अंधेरे में एक आदमी पानी पे चल कर आ रहा And हो, then on top of that, someone walking on water in the darkness of night. तो ये नेचुरल है कि हम लोग घबरा जाएंगे, डर जाएंगे। It is natural, beloved, that we will be scared and एक terrified. तो हमारी नाव डूब रही है, One thing, our ship is हम sinking. लोग मरने जा रहे We हैं, are about to die. और ऊपर से कोई भूत भी सामने आ रहा And है। then on top of them, we see a spectrum, a ghost. चेलों ने जब देखा कि पानी पे कोई चल रहा है, When the disciples saw that somebody was walking तब on उन्होंने water, कहा कि आज तो हमारी जिंदगी खत्म, then they thought, today we are finished. क्योंकि एक तो नाव डूब रही, आंधी तूफान आ रहा, Because first thing, our ship is sinking and we are caught up by storm and strong winds. और ऊपर से भूत भी हमारे सामने है। And on top of that, ghost is also कितने there. लोग भूतों से डरते हैं? How many people are here scared of ghosts? आप लोगों का अनुभव है भूतों से डरने का? भूत, चुड़ैल और दुष्ट आत्माएं, इनसे कितना डरते हैं लोग? नहीं डरते। How many of you, brothers and sisters sitting here, are scared of ghosts and evil spirits? हम लोग सचमुच में बहुत ज्यादा डर जाते हैं जब हमारे बीच में सचमुच में भूत वगैरह की चर्चा भी करते हैं। अगर See, beloved, we are naturally inclined to get very scared even when someone just mentions about these ghosts बचपन and में evil क्या spirits. होता था? बचपन में क्या होता था कि हम लोग भूतों की कहानियां सुनते थे तो बड़े रोंगटे खड़े हो जाते थे।
What used to happen in childhood when we would hear about these stories, our hair would erect on the body. और हम लोग फिर अंधेरे से डरते थे. And we would be scared of the darkness. फिर हम लोग जो है किसी की रात में आवाज से भी डरते थे. And then we would even be scared if someone would make a sound in the night. भूतों का डर इतना सताता था So much was the fear of ghosts कि हमको सांपों से डर लगता था, that we would be even scared of the snakes, मकड़ी से डर लगता of था, spiders, छछूंदरों से डर लगता था, of the muskrats, चूहा से डर लगता of था, mouse, और चमगादड़ों से डर लगता था, and even from bats, मगरमच्छ से डर लगता from था, crocodiles, गहरे पानी से डर लगता था, from deep sea, आंधी तूफान से डर लगता from था, wind and storm, ऊंचाई से डर लगता from the था, height, हवाई जहाज जाने में डर लगता था, from the sound of aeroplane. और अब हमको किसी भी इंसान से भी डर लगता था, And sometimes we would be terrified even of people, बीमारियों से डर लगता था. from diseases. आज कोरोना की बीमारी से बहुत लोग डरे हुए हैं, Today many people are scared of corona, बहुत डरे हुए हैं, very much scared. इतना ज्यादा डरे हुए हैं कि अब लोग जिंदगी में आनंद नहीं ले पा रहे हैं. So much scared that they are not able to rejoice in their lives. ऐसी स्थिति में हम लोगों का आनंद ठंडा हो जाता है, And our joy has become cold in this situation. क्योंकि सचमुच में एक डर हमारे जीवन को सता रहा है. Because in reality, beloved, fear is surmounting our lives. इसीलिए प्रभु यीशु मसीह उस रात में पानी पे चलकर अपने चेलों की सहायता करने के लिए गए. But Jesus, on that day, he was walking on waters to help his disciples. यीशु मसीह जानते हैं कि सचमुच में हमारे चेले जो हैं वे इस वक्त मुसीबत में हैं, Because Jesus knew that in reality his disciples were in great danger at that time. और वे सचमुच में उन लोगों को हकीकत में उस वक्त उद्धार, मुक्ति, छुटकारे, सुरक्षा की और उनके जीवन में चमत्कार की जरूरत है. And they really needed deliverance and salvation in their lives. हमेशा एक बात याद रखो कि जब भी परमेश्वर के बच्चों को कोई भी मुसीबत होती है, परमेश्वर को सब कुछ पता होता है. Remember, beloved, whenever the children of God need any help, Lord knows it. और प्रभु यीशु मसीह खुद चल कर के, उनके पास नाव भी नहीं थी लेकिन वे चले गए. And here, what do we see? Jesus was walking on water even when he didn't have the ship. यीशु मसीह शायद पूरी रात प्रार्थना में रहते, Maybe otherwise Jesus would have prayed all night. लेकिन जब उन्होंने जाना कि हमारे चेले मुसीबत में पड़े हुए हैं, But when he realized that his disciples were in problem, तब प्रभु यीशु मसीह उठकर चल दिए. then Jesus walked on water. उनके चारों तरफ कोई भी नाव नहीं थी, And there was no boats and ships around Jesus. कोई भी वहां पर किराए की भी नहीं थी. Not even on rent. पर कैसे प्रभु यीशु मसीह जाएंगे? But how Jesus would go now? एक चीज याद रखो, प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई भी कुछ भी रोक नहीं सकता है हमारे पास आने के लिए. Remember, beloved, no one can stop Jesus from coming to you. यीशु मसीह को सचमुच में पानी पे भी चलना आता है, Jesus really knows how to walk on क्योंकि water. वो पानी का बनाने वाला परमेश्वर है. Because he is the one who created those समुंदर और झील, नदियां सब उसने बनाई. those seas and oceans. He created them all. वो सचमुच में सृष्टि करता है, He really is the creator. और वो ही है जो हमारे जिंदगी को बनाता है, And he is the only one who can make our lives. और वो ही है जो हमारी रक्षा करता है. And he's the only one who does good to us. आज जब वो यीशु मसीह उस रात में अपने चेलों के पास पहुंचे, This night when Jesus reached his disciples, तो उन्होंने सबसे पहले क्या कहा? what do you think the first thing Jesus said? उन्होंने सबसे पहले कहा, He said, उन्होंने कहा डरो मत. do not fear. उसने कहा ढाढ़स बांधो, Be courageous. मैं हूं, I am there. मैं हूं, डरो मत. I am there. Do not fear. आज की सचमुच में सभा में, In today's service, आज की सुबह में in today's morning, परमेश्वर आपको यही बात कहने जा रहा है this is what God is going to tell you, beloved. कि ढाढ़स बांधो, Be courageous. हिम्मत बांधो, Be strong. मैं तुम्हारे साथ हूं. I am with you. आज का वचन यही है कि डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं. Today's message, beloved, is do not be scared.
scared, I am with you. परमेश्वर कह रहे हैं कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। God is telling you, do not be scared, I am with you. उन्होंने दूर से देखा कि ये कोई भूत है They were thinking this is a ghost, और वे डरे हुए थे, and they were really petrified. लेकिन जब प्रभु ने कहा कि डरो मत, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, But when the Lord said, do not fear, it is me, उसी वक्त से एकदम तस्वीर, पिक्चर बदल गई। everything changed. एकदम सारा डर खत्म हो गया, Fear was gone. एकदम सारी चिंताएं खत्म हो गईं, Disappointments were gone. आंधी तूफान शांत हो गया Winds and storm came to a standstill. और नाव उनकी ठीक हो गई। And their ship stopped sinking उन्होंने away. अपनी आंखों से यीशु को पानी पे चलते देखा। And with their own eyes they saw Jesus walking on water. पतरस भी पानी पे चला Peter could also walk on water. और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और भी ढेर सारे चमत्कार आगे हुए। And then many miracles happened through Lord Jesus. हमारा परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। Our God is the only God who does miracles. हमारा and wonders. परमेश्वर हमें मुसीबतों से निकालने वाला He is परमेश्वर the है। only one who takes us out of problems. वो हमें हर मुसीबत से निकालेगा। Will take you out from every problem. याद रखो, पूरी दुनिया के लिए यीशु मसीह सचमुच में उन्हें बचाने के लिए इस दुनिया में आ गए। Remember, beloved, Jesus Christ only came into the world to save us. सारे के सारे लोग पाप करके पापी हो गए, नरक जा रहे थे। Everyone was a sinner and everyone was going to hell. बाइबल कहती सब के सब भटक गए थे Everyone went astray. और कोई भी परमेश्वर को चाहने वाला नहीं, जानने वाला And नहीं। there was really no one who loved God. सबने पाप किया है। Everyone sinned. पाप की वजह से लोग मर रहे हैं। And because of sin, people were आज dying. पूरी दुनिया में ये जो कहर बरस रहा है, ये पाप की वजह से है। And this corona is because of sin. पूरी दुनिया में पाप बढ़ने की वजह से World is full of sin. लोग मन नहीं फिरा रहे, People are not changing their lives. लोग सृष्टि की सेवा करना छोड़ नहीं रहे। They are still going on worshipping the लोग creation. इंसान के पीछे भागने से रुक नहीं रहे They are हैं, running after people, वे जानवरों के पीछे भाग रहे हैं, running after animals, धन दौलत के पीछे भाग running रहे हैं, after money. पर जगत के सृष्टिकर्ता के पीछे नहीं आ रहे हैं। No one is coming after the creator. इसलिए पूरी दुनिया डरी हुई है, That's why everyone is scared. पूरी दुनिया डरी हुई है। The whole world is in fear. आज लोगों को यीशु मसीह को देखने की जरूरत है। People need to see Lord Jesus today. आज पूरी दुनिया को यीशु मसीह को प्रभु जानना जरूरी है। Everyone needs to accept Jesus as the Lord. हर एक व्यक्ति यीशु मसीह को जान जाए कि वो प्रभु है। Every person must acknowledge that Jesus is बाइबल the Lord. कहती है कि जो कोई भी प्रभु यीशु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। And Bible tells us that everyone who calls on the name of the Lord shall be saved. बाइबल कहती है कि यीशु ही प्रभु है। Bible tells us Jesus is the Lord. बाइबल कहती है स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं है, In the heavens over the earth there is no other name. केवल यीशु ही प्रभु है। Only Jesus is the Lord. और वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। And He's telling you today that I am with you. इसलिए 2000 साल पहले वो इस दुनिया में मनुष्य बनकर आया, इम्मानुएल बनकर आया, ताकि वो हमारे साथ रह सके। That's why 2000 years back He had to come as a man, live as a man, and dwelt in the midst of us as a man. प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हैं, Lord is with us. और जब वो हमारे साथ हैं And when He is with us, तो फिर मुझे और आपको डरने की जरूरत नहीं है। then we need not be scared, beloved. मुझे और आपको डरने की जरूरत नहीं We है, don't need to fear, beloved, क्योंकि वो सचमुच में हमारे साथ है। because He is really with us. हमें डरने की जरूरत नहीं, And so we need not be आंधी scared तूफान से डरने की जरूरत नहीं, of the winds and the storm. मुझे और आपको किसी बीमारी से डरने की जरूरत नहीं, Not be scared of any sickness and disease. मुझे और आपको दुश्मन से डरने की जरूरत We नहीं। need not be scared of any enemies. बाइबल कहती परमेश्वर अगर हमारी ओर है, Bible tells us if the Lord is with us, परमेश्वर अगर हमारी ओर है, if the Lord is with us, तो हमारा विरोधी कौन होगा? who can be against us? कोई बीमारी भी नहीं, No sickness, कोई दुश्मन नहीं, no enemy. हमारे संग परमेश्वर है, Lord is with us. हमारे संग परमेश्वर है। Lord is with us. सबसे पहले ये विश्वास करो कि वो हमारे साथ है। First believe, beloved, that He is with you. अगर आप ये विश्वास करो कि वो हमारे साथ है, If today only you believe that He is with you, तो हमें डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। then you won't be scared. हम डरेंगे We नहीं, won't be in fear. हम डरेंगे We नहीं, won't be scared. डर खत्म हो जाएगा। Fear will
finish it. अगर ये सचमुच में विश्वास है कि वो हमारे साथ है, If only today you believe that He is with you. चेलों का सारा डर खत्म हो गया। The fear of disciples finished. जैसे ही उन्होंने कहा, The moment Jesus said, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। do not fear, I am with you. परमेश्वर के साथ कोई डर नहीं होता। There is no fear with God. परमेश्वर के साथ में कोई डर नहीं होता। There is no fear with God. जिनके साथ परमेश्वर है वे डरते नहीं है। People with who there is, people who have God are not वे scared. कभी डरेंगे नहीं, They will never have any fear. कभी डरेंगे नहीं। They will never have any fear. आपके जीवन का सबसे बड़ा खतरनाक दुश्मन डर है। Your biggest enemy is fear, beloved. कहते हैं जो डरा वो मरा। It's being said, the one who fears is the one who dies. हमको क्यों डरना चाहिए? Why should we be जब scared परमेश्वर हमारे साथ है। when the Lord is with us? आज हम और आप दुनिया में ना जाने किन किन चीजों से डरते हैं। Today we are scared of so many things in the world. बाइबल हमें अच्छे से बताती है कि हमारी कमजोरी बीमारी में हम डर जाते हैं। Bible tells us very clearly that in our weaknesses we are scared often. लेकिन बाइबल हमें समझाती है यशायाह उसका 41 अध्याय के 10, 11, 12, 13 पदों में। But in the book of Isaiah chapter 41:10, यशायाह 41 अध्याय 10 पद में लिखा, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताव क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। इंग्लिश। behold, all they that were incensed against thee shall be ashamed and confounded. They shall be as nothing, and they that strive with thee shall perish. देख, जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नाश होकर मिट जाएंगे। Thou shalt seek them and shall not find them, even them that contended with thee. They that were against thee shall be as nothing and as a thing of naught. जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा, जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नाश होकर मिट जाएंगे। For I, the Lord thy God, will hold thy right hand, saying unto thee, fear not, I will help thee. क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया। कितना हमारे लिए ये वचन तसल्ली देता है। How much does this word comfort us? कितना ज्यादा हमको ताकत देता है। Gives us strength. परमेश्वर स्वयं बोल रहे हैं, स्वयं। Lord himself is talking here. जैसे यीशु ने चेलों से जब कहा डरो मत मैं हूं, In the same manner, Jesus spoke to his disciples to not fear. एकदम डर खत्म हो गया, And fear vanished. एकदम डर खत्म। Fear finished. इसलिए That's why परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं कि हमारा डर खत्म हो जाए। this is what God wants, that our fear goes away. बाइबल कहती है कि डर मत, मैं तेरे संग हूं। Bible tells us, do not fear, I am with you. इधर उधर मत ताक, Do not look to the left or to the मैं right. तेरा परमेश्वर I हूं, am your God. मैं तुझे दृढ़ करूंगा, I will strengthen you. तेरी सहायता करूंगा, I will help you. अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। I will exalt you by my righteous right hand. बाइबल कहती देख जो तुझसे क्रोधित हैं See, the ones who were angry with you, वे लज्जित होंगे, they will be ashamed. जो तुझसे झगड़ा करते हैं The ones who used to fight with वो you, उनके मुंह काले होंगे they would Ashamed. have long faces और विनाश हो जाएंगे, मिट जाएंगे। and they will perish. बाइबल कहती है कि जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू नहीं पाएगा। Bible tells us the people who always oppose you, when you want to find them also you will not find जो them. तुझसे युद्ध करते हुए नाश होकर मिट जाएंगे, People who wage war against you will be destroyed. क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। Because I am the Lord your God. तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूंगा यहोवा, वो कहूंगा मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। I will hold you by your right hand and I will tell you, fear not, I am with you. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. सबसे पहली बात आज जो मुझे और आपको सीखनी है, The first thing, beloved, that we need to learn today is क्यों मुझे और आपको नहीं डरना है? why we need not be scared. क्योंकि परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। Because Lord the God is our God. जिन लोगों के जीवन में ये रिश्ता नहीं है कि परमेश्वर मेरा परमेश्वर, वे डरते हैं।
People who do not have a good relationship with God, they are scared. कि उन्हें यही नहीं मालूम है कि उनका परमेश्वर मेरा परमेश्वर है. Because they don't know that their God is with them. आपको मालूम होना चाहिए कि जो जगत का सृष्टिकर्ता परमेश्वर है वो मेरा परमेश्वर है. You should know, beloved, that the creator of the world is your God. क्या आपको ये एक्सपीरियंस है, अनुभव है Do you have this experience? कि परमेश्वर मेरा परमेश्वर है? That the Lord is my God. अगर आपको ये पता हो कि परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, If only you knew that the Lord is your तब God, परमेश्वर कह रहे हैं आपको डरने की जरूरत नहीं है, then the Lord is telling you today, do not क्योंकि be दुनिया की हर scared. चीज परमेश्वर से डरती है. Because everything in the world is scared दुनिया of की God. हर चीज परमेश्वर से डरती है. Everything in the world is scared of God. हर कोई भी चाहे कितनी बड़ी विरोधी शक्ति क्यों ना हो, परमेश्वर से डरती No है. matter the principalities or the powers of darkness, they are under the subjection of Lord मौत Jesus. परमेश्वर से डरता है. Death is under the Lord. बीमारी परमेश्वर से Sickness and डरती है. disease bow before Jesus. शैतान परमेश्वर से डरता Satan है. is scared of Jesus. इंसान परमेश्वर से Men डरता are है. scared of God. हर कोई किसी की हिम्मत नहीं है Everyone. कि परमेश्वर का कोई सामना कर ले. No one can face God. परमेश्वर हमारी ओर है. Lord is with us. परमेश्वर को हम जानते हैं. We know the Lord. परमेश्वर अगर हमारा परमेश्वर है And if the Lord our God is our तो God, फिर हम डरेंगे नहीं. then we won't be scared. सबसे पहले ये चीज सीख लीजिए. Please remember first this thing. दूसरी चीज क्या सीखनी है Second thing, कि परमेश्वर सिर्फ हमारा परमेश्वर ही नहीं है, God is not only our God, वो हमारे साथ है. He is with us. दूसरी बड़ी खास बात कि परमेश्वर हमारे साथ है. Very important thing that God is with us. वो सिर्फ परमेश्वर हमारा परमेश्वर ही नहीं है, He is not only the God our God, वो ऐसा परमेश्वर कि हमारे साथ ही रहता है. He is that God who even stays with us. हालेलुया. Hallelujah. पहली बात तो वो पूरी दुनिया में विराजमान है First thing that He is enthroned and क्यों? is running the entire world. क्योंकि वो ओमनी प्रेजेंस है, Because He is omnipresent. तो वो हर जगह उपलब्ध है. That's why He's present everywhere. लेकिन कई बार हम अपने अंदर नहीं महसूस करते But sometimes inside of us we do not feel, क्योंकि हमारे पास में एक अंदर दिल है because we have a heart और उसके ऊपर उसके अंदर एक सिंहासन है and there is a throne in there जो पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है. which is controlling the entire body. वो उसको उसमें बैठाने से हमें महसूस होता है कि हमारे संग परमेश्वर है. And when we enthrone the King of Kings into our hearts, it's then we feel that the Lord is with जितने us. भी लोग यीशु मसीह को स्वीकार करते प्रभु मानकर अपने दिलों में, People who really acknowledge Jesus as Lord in their hearts, जो लोग अपना दिल यीशु को देते हैं, who give their hearts to Jesus, वो लोग उद्धार पाते हैं. they only get saved. उनके अंदर यीशु रहते हैं. Only Jesus lives in इसीलिए them. बाइबल कहती है यीशु दिल के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता है. That's why Bible tells us Jesus is knocking at the door of your heart. जो कोई भी सुनकर उसे अपने दिल में बुलाएगा, Whoever listens and accepts यीशु Him, उनके दिल में आएंगे, God will live in their hearts. उनको शुद्ध करेंगे, Will purify उनको them. पवित्र करेंगे, Will sanctify them. उनके पाप क्षमा करेंगे, Will forgive their उन्हें sins. नई सृष्टि बनाएंगे, Will make them a new creation. अपनी संतान बनाएंगे, And will make him his child. डर खत्म करेंगे, Fear will go. प्यार भरेंगे, Will fill him with आनंद love. भरेंगे, Joy. आपको मजा आएगा. And you will rejoice. आपको किसी चीज की परवाह नहीं And होगी you will not care about कि anything. परमेश्वर आपके साथ है. Because the Lord is with you. तो दूसरी खास बात क्या है What is the second important thing? कि परमेश्वर हमारे साथ है. That the Lord is with us. हालेलुया. Hallelujah. इसलिए वो कहता है कि तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए. That's why he's telling you today, beloved, don't be disappointed. इसलिए वो कहता है हिम्मत बांधो, Be strong. मैं तुम्हारे साथ हूँ, I am with you. तुम्हें डरने की जरूरत नहीं. You need not be scared. आंधी तूफान कुछ भी करे, Wind and storms. नाव चाहे कितनी भी हिलाए, Ship is sinking. पर जब तक मैं हूँ, But as long as I am ये there, तुम्हारा आंधी तूफान कुछ नहीं कर सकता. nothing will happen to you. ये नाव तुम्हारी कभी डूबेगी नहीं, Your ship will never sail क्योंकि away. मैं तुम्हारे साथ हूँ. Because I am with you. चारों तरफ कितना भी विरोध हो, No matter how much कितनी the भी opposition, बीमारियां हो, how many the sickness कितना and भी disease, हमला हो, how much the पर attacks, परमेश्वर हमारे साथ है. the Lord is with us. इसलिए मुझे कुछ नहीं डरने की जरूरत That's why है. we need not be scared. हालेलुया. beloved. Hallelujah. कितने लोग विश्वास करते हैं. How many people believe in this इसलिए today? मुझे और आपको इस परमेश्वर को जानना चाहिए. That's why we need to know this God, भजन beloved. संहिता 46 अध्याय के 10 पद में, In the book of Psalms भजन संहिता 46 अध्याय के 10 पद में 46, लिखा, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं और मैं जातियों में महान हूं, मैं पृथ्वी भर में महान हूं. be still and know that I am God. I will be exalted among the heathen. I will be exalted in the earth. कितनी अद्भुत बात है. वो कहता है जान लो, No. जान लो. बहुत से लोग जानते नहीं ये बात.
और चुप नहीं रहते, चिल्लाते रहते हैं। आपको चिल्लाने की और रोने की और परेशान होने की जरूरत नहीं है। Beloved, you need not cry and weep and wail and shout. डरो मत, चारों तरफ क्या हो रहा है। Don't think what is happening all around you. देखिए मौतें हो रही हैं, See, people are dying. बुरी हालत है, It's a bad condition. मौतें और होंगी, And many deaths will take place. ये तो होना ही है। It will happen. दुनिया का अंत होना ही है, World will finish. लोगों का न्याय होना ही है, And judgment will come. लोग बीमार होंगे ही, People will be diseased. लोग मरेंगे ही। They will die. इसमें धर्मी लोग अधर्मी दोनों मरेंगे। Righteous and righteous both will die. मौत तो एक वास्तव में एक प्रतिक्रिया है Death is a process, beloved. कि हम ऊपर जाएं और परमेश्वर के सामने खड़े हों, That we go before the Lord and stand before His judgment seat. और हमको वो स्थान मिले जो हमने चुना है। And we get the reward that we deserve. हमने जो कुछ भी बोया वो हम काटेंगे। That we reap whatever we have sown. अगर आपने और हमने पाप किया तो पाप का फल मिलेगा, If we have sinned, then we will get the reward for sins. और अगर हमने पापों से मन फिरा करके पवित्र बनकर प्रभु के लिए जिए तो हमें वो इनाम मिलेगा। But if we have turned away from our sin and living a life of righteousness, then we will get a reward from the मृत्यु तो Lord. आना जरूरी है, Death is imminent. वो तो होगा ही, It will happen. क्योंकि बाइबल में लिखा है कि सबको एक बार मरना और न्याय होना जरूरी है। Because Bible teaches us that everyone has to die once and there will be judgment. लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? But what is important? क्या सचमुच में हमने परमेश्वर को पाया है अपने जीवन में? But it is for us to think, have we really received God in our life? क्या हमारे संग परमेश्वर है? Is God really with us? अगर हमारे संग परमेश्वर है If God is with us, तो हम मसीहों के लिए वो सचमुच में वो एक अनंत जीवन देता है, then He will give all of us eternal life, beloved. और हमारी मौत नहीं होती, And we will never die, बल्कि हमारे प्रमोशन होता है। but we will be promoted. हम लोग एक अनंत काल के एक ग्लोरियस बॉडी में जाते हैं, We will get a glorious body. और उस शरीर में हम परमेश्वर के संग सदा के लिए रहेंगे। And we will always live with our God in that body. इसलिए इन दिनों में अगर बीमारी के माध्यम से अगर धर्मी लोग भी मर रहे हैं तो ये कोई डरने और बुराई नहीं है। So beloved, even in these times, even righteous are dying, let us not be in dismay. यीशु मसीह भी मरे और इस दुनिया को छोड़ करके उस स्वर्ग में चले गए। Lord also died and reached heaven. वो जिंदा हुए और चले गए। He was risen and He ascended. हम भी जिंदा होंगे और उसके साथ हमेशा के लिए रहेंगे। We will also be resurrected and will live with Him forever. मृत्यु हमारी हानि नहीं है, Death is not our बल्कि loss, हमारे प्रमोशन है। but it's our promotion. ज्यादातर हम लोग मौत से डर रहे हैं We are scared of death. कि भैया मर ना जाए, We should not die. लेकिन हम मसीहों को मौत से डरने की जरूरत नहीं, But we Christians need not be scared of death, क्योंकि मौत से हम ऊपर आ गए हैं। because we have reached another level. हमको क्या करना है? केवल हमारा प्रमोशन होने के लिए हमें ये शरीर को क्या करना है? जमीन में गाड़ना होगा और हमको एक नया शरीर परमेश्वर देंगे। Now what do we need to do, beloved? We only need to wait for our promotion to take place to get a glorious body और from the वो Lord. परमेश्वर हमें अपने टाइम पर हमें बुलाएंगे। And Lord will call us to Him in His time. इसलिए हम लोग कभी भी ये बात से परेशान ना हो कि जब भी वो बुलाए हम जाने को तैयार होना चाहिए। So we should always be ready whenever we get a call from Him. चाहे यीशु मसीह दोबारा आगमन में हमें उठा ले, Whether Jesus comes back and takes us with us, उनके आने में देर हो सकता है, हम मर जाएं और हमें गाड़ दिया जाए, His coming may linger, maybe we die before He comes. लेकिन वो सब हमारे लिए हानि नहीं है। But all that is not a loss for वो us. हमारे लिए कोई भी डर का कारण नहीं है। It's nothing to be feared about. पौलुस कहता है कि अगर मैं जिंदा हूं तो मसीह के लिए हूं, Paul says, if I'm alive, I'm living for Christ. और अगर मैं मर जाता हूं तब भी मैं परमेश्वर के लिए हूं। And even if I die, it is a gain for me. मैं वहां पर सचमुच उसके साथ रहूंगा। I will really be with Him. वो यहाँ पर भी मेरे साथ है Here also He's with me. और वो वहां पर भी मेरे साथ होगा। There also He will be with me. इसलिए मुझे और आपको सचमुच में ये विश्वास करना कि वो मेरे साथ है। That's why, beloved, we need to believe today that the Lord is with us. तो ना केवल वो हमारा परमेश्वर है, So not only He is our God, ना केवल वो हमारे साथ है, not only He is with us, बल्कि वो हमारे चारों तरफ है। but He is all around us. हालेलुया, Hallelujah. वो हमारा चारों तरफ है। He is all around us. हालेलुया, Hallelujah. बोलिए सब लोग।
Please everyone say, बोलिए, glorify him. बिना किसी डर के Say without fear, मैं जीवित रहूंगा I will be alive क्योंकि वो मेरे साथ है। because he is with me. दूसरी बात, Second thing, मैं बिना किसी डर के without any fear, जीवित रहूंगा I will be alive क्योंकि वो मेरे चारों तरफ है। because the Lord is all around me. हालेलुया। Hallelujah. इसलिए बाइबल कहती है कि वो चाहता है कि हम मजबूत बने। That's why Bible teaches us that Lord wants us to be strong. आपको परमेश्वर मजबूत बनाना चाहता है God wants to make you strong. और वो उसके लिए शक्ति देना चाहता And है। he will give you even strength for इसीलिए that. उसने पवित्र आत्मा दिया है। That's why he's given us Holy उसने Spirit. कहा जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा He says when the Holy Spirit would come upon you, तब समझो परमेश्वर तुम्हारे साथ है, then think that the Lord is with you. तुम शक्ति पाओगे You will get the सामर्थ strength, you पाओगे will get the power. और फिर तुम सामना कर सकोगे हर चीज का। And then you will be able to face तुम everything. कुछ भी कर सकते हो। You will be able to do anything. फिलिपियों 4 अध्याय के 13 पद, फिलिपियों का 4 अध्याय In के the book 13, of Philippians, फिलिपियों 4 अध्याय के 13 पद, chapter 4, verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ Amen. कर सकता Praise हूँ। God. हालेलुया, Amen. आमीन। Amen. इसलिए मुझे परमेश्वर मजबूत करेगा। That's why God is wanting to strengthen तो us. ना केवल वो परमेश्वर मेरा है, So not only He is our God, बल्कि वो मेरे साथ है, but He is with us. बल्कि वो चारों तरफ मेरे साथ But है, in fact, He's all around us. बल्कि वो मुझे सामर्थ देता But है, He will also give us strength. वो मुझे अंदर से मजबूत Will करता है strengthen us from the inside, ताकि मैं कुछ भी कर सकूं, so that I can do anything. हर चीज का सामना I कर can सकूं। face anything. तो आज परमेश्वर आपको मजबूत करना So चाहते today हैं, God wants to strengthen you, आपको beloved. शक्ति देना He चाहते wants to हैं। give you strength. इसलिए बाइबल कहती है हमको और आपको परमेश्वर की उस शक्ति पर विश्वास करना है कि जो वो हमें देता है। That's why Bible teaches us that we need to believe in the strength of the God that He gives इब्रानियों us. का 13 अध्याय के 6 पद पढ़ते In the हैं। book of Hebrews, इब्रानियों का 6 अध्याय के 13 पद पढ़ते chapter हैं। 6:11, इब्रानियों chapter का 13:6, इब्रानियों का 13 अध्याय के 6 पद so पढ़ते that हैं। we may boldly say, the Lord is my helper, and I will not fear what man shall do unto me. हालेलुया। इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। He said, वो कहता है कि मेरा सहायक, मेरा हेल्पर, मेरा परमेश्वर है, The Lord is our helper. मैं ना डरूंगा। I will not be scared. मुझे मेरा मनुष्य क्या कर सकता है? What can anyone do to me? सोचो क्या कर सकता है? Think, what can anyone No do to one you? can do anything against me, कोई भी आपके विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। because the Lord is with us. वो मेरे साथ ही नहीं है, And He is not only with us, बल्कि वो मेरी सहायता के लिए है। but He is also for my help. परमेश्वर सिर्फ नाम मात्र के लिए मेरे साथ नहीं है, Not only for namesake, बल्कि वो मेरे साथ है but मेरी He मदद is with करने us के to लिए। help us. मेरा परमेश्वर मेरी मदद करने वाला With है, us to help us. वो मेरी सहायता करने वाला है। He will help me. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. मुझे और आपको ये बात समझनी है। चौथी बात, Beloved, we need to understand this thing, the fourth thing. ना केवल वो मेरे साथ है, Not only He is with us, ना केवल वो मेरे चारों तरफ है, not only He is around us, ना केवल वो मजबूत करेगा, not only He will strengthen us, बल्कि वो मेरी हर सिचुएशन में मेरी मदद करेगा, but He will help me in every वो मेरी situation. सहायता करेगा। He will help me. वो मुझे एक उंगली से नहीं संभालता, Not only by His one finger, वो मुझे दो उंगली से नहीं संभालता, not by His two fingers, बल्कि वो अपने पूरे दाहिने हाथ से मुझे संभालता but He है। is holding us वो like पूरे this. दाहिने हाथ से संभालता He है। is taking us like this. आप सोचो कोई अगर आपको एक उंगली से मदद कर रहा हो Imagine someone is helping you only तो just by a finger. तो वो पूरा आप पर रुचि नहीं ले रहा है, That means He is not interested वो in पूरी you. ताकत नहीं लगा रहा That है। means He's not trying to strengthen you. हो सकता है वो आपको अपने हाथों से उंगलियों से छोड़ दे, Maybe that person will leave you. लेकिन जब कोई पकड़े अपने पूरे हाथ से मुझे, But when someone is holding you like this, beloved, तो वो छोड़ेगा नहीं। He will never leave you. मान लो पहाड़ से लटक रहे हो Even if you are on a high cliff और गिरने वाले हो and about to, और कोई कह रहा है मेरी सिर्फ उंगली पकड़ के ऊपर आओ,
and you are about to fall and आप someone is telling you just come up by the आप finger, डरते रहोगे क्योंकि वो एक उंगली से पकड़ रहा है। you will be scared. लेकिन बाइबल कहती है कि वो एक उंगली से नहीं, दो उंगली से नहीं, पूरे हाथ से, वो भी दाहिने हाथ से आपकी सहायता करेगा। But the Bible teaches us not by one finger, not by two fingers, but He's holding you like this. हालेलुया। Hallelujah. कितनी महान बात है What a great thing कि परमेश्वर आपको कभी छोड़ेगा नहीं, that the Lord will never leave you, वो कभी आपको त्यागेगा नहीं। never forsake you. वो आपका परमेश्वर है He is your God और वो आपके साथ है, and He is with you. वो आपके चारों तरफ है, He is all around वो आपके you. अंदर है, He is inside वो of आपको you. मजबूत करता है He strengthens you, और beloved. वो आपकी हर सूरत में मदद करेगा। And in every aspect He इसलिए will वो help कहता you. है डरो मत, That's why He says, do डरो not मत, fear, do not fear. इधर उधर मत ताको, Do not look left and right. परमेश्वर को देखो, Look to the अपना Lord. जीवन उसको दे दो। Give your life to Him. आप अगर आज डर रहे हो, If you are scared today, आपको सचमुच में मौत का डर है, if you are really scared of the कोरोना का cancer, डर है, of corona, बीमारियों का डर है, of sickness, अपनी जिंदगी का डर of है, your life, तो आप परमेश्वर के पास आ जाओ, then come उस to जीवित Jesus. परमेश्वर के पास आ जाओ, Come to the living God, जो मर के जिंदा हुआ है। who is risen. वो आपके पाप क्षमा करेगा, He will forgive वो your आपको sins. उद्धार करेगा, He will वो save अनंत you. जीवन देगा, He will give you eternal आपका life. नाम जीवन की पुस्तक में He लिखेगा, will write your name in the book of life. आपका उद्धार करेगा, You will be अपनी saved. संतान बना लेगा, He will make you His आप child. उसकी नई सृष्टि हो You जाओगे, will be a new creation. मौत से नहीं डरोगे, You won't be scared of बीमारी death, से नहीं not डरोगे, of disease. आपके साथ में He रहकर will बड़े give बड़े you काम the करे। edge of the age. ओ हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत मौके के लिए जब तेरे बच्चों ने तेरे वचन को सुना है, और हमें विश्वास है कि तूने हम सबको आशीषित किया और मजबूत बनाया इस तरह से जिससे कि हम तेरे वचन में खूब आशीष पाएं। प्रियो, यदि आज आपने परमेश्वर के वचन को सुना है और सुनकर के ये वास्तव में विश्वास करते हो कि यीशु मसीह आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं, यही मार्ग, यही जीवन और यही सच्चाई, अगर इसी में आपको आशा नजर आ रही है, तो आज यीशु मसीह पर विश्वास कर लीजिए, अपना दिल खोल लीजिए। वो आपके दिल में आकर आपका उद्धार कर सकते हैं, आपके पाप क्षमा कर सकते हैं। आपको क्या करना है? एक छोटी सी प्रार्थना करनी है। क्यों ना आप दिल खोल लीजिए, क्यों ना अपनी आंखें बंद कर लीजिए और हाथ जोड़ लीजिए। घुटना टेकना चाहें घुटने टेक लीजिए, उसके पास नर्म और दीन होकर के आ जाइए और एक छोटी सी दुआ कीजिए, एक छोटी सी प्रेयर कीजिए। क्या आप मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहेंगे? यदि हाँ, तो आइए अपनी आंखें बंद कर मेरे पीछे प्रार्थना करें। मेरे पीछे प्रार्थना बोलिए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, आज के वचन के लिए जो मैंने आज सुना है। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सच्चे परमेश्वर हैं। आप इस दुनिया में मनुष्य बनकर आए, मेरे दुखों को उठाए, मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जिंदा हो गए, आज भी जिंदा है। मुझ पापी पर दया करो, मेरा उद्धार करो, मेरे जीवन को बदल दो, मेरे दिल में आप आ जाओ, मुझे अपने खून से धो दो, जो खून आपने कलवरी क्रूस पे बहाया था। मेरे दिल में आप आ जाइए, मेरे पाप क्षमा कर दीजिए, मेरा नाम नरक से काटिए, जीवन की पुस्तक में लिखिए, अपनी संतान बना लीजिए। आज से मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ, अपना दिल देना चाहता हूँ। मैं अपना दिल खोलता हूँ, आप मेरे दिल में आ जाइए और मेरा उद्धार कीजिए। ऐसी मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से विश्वास करता हूँ, आपको स्वीकार करता हूँ अपना मुक्तिदाता के रूप में। आज से मैं आप लीजिए, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद के साथ मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। आमीन। अजीजों, गॉड ब्लेस यू। अगर आपने इस तरीके से प्रार्थना की है तो आपका उद्धार होना तय है, आपके पाप क्षमा होना तय है, और अब आप मसीह में एक नया जीवन जीने के लिए, मसीह में बढ़ने के लिए लगातार आप प्रार्थना कीजिए। अपने घर में परमेश्वर के साथ बैठकर वचन पढ़िए और संगति कीजिए, कलीसिया में आइए और परमेश्वर के वचन को सीखिए। प्रभु आपको आशीष दे।
God bless you. Dear beloved brothers and sisters, we would encourage you that kindly watch our morning devotion that comes every day sharp at 8 a.m. in the morning, and you would be richly blessed. Because as for me, I have many testimony that I have seen many people getting blessed through this daily devotion, and my life has been richly blessed too. So as a believer, as in Christ, I would encourage all of you to get connected every day with us daily at 8 a.m. and be blessed. Be blessed in the name of Jesus Christ. मेरे प्रिय भाई बहनों, हम आपसे ये निवेदन करते हैं कि जो सुबह हर दिन 8 बजे डेली डिवोशन आता है, हमारा बाइबल डिवोशन आता है, जो रेवरेंड सीनियर पास्टर डैनियल थ्रू के द्वारा दिया जाता है, हम चाहते हैं कि आप उसमें हर दिन जुड़ें और जुड़ें, क्योंकि जब आप जुड़ेंगे तो आप ज़रूर आशीषित पाएंगे। ये मेरी खुद की पर्सनल गवाही है, क्योंकि मैंने यहाँ से जुड़ के और मैंने यहाँ पे रह के बहुत सारी आशीषें बटोरी हैं और बहुत सारी गवाहियाँ मेरे पास आती हैं और बहुत सारी गवाहियाँ मैंने सुनी है। तो उन गवाहियों को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको निवेदन करती हूँ और मैं आपको प्रोत्साहित करती हूँ कि डेली डिवोशन नियम से देखें और बहुत सारी आशीष पाएं। और जब आप खुद आशीषित होते हैं तो हम ये निवेदन करते हैं कि दूसरों तक भी वो आशीष पहुँचाएं। जितना हो सके लाइक, शेयर, कमेंट करें। यीशु मसीह के नाम से ऐसा करें। आप सभी को प्रभु आशीष दें।